बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, आज हमने टॉपिक डिस्कस करना है जी ऑर्बिट, सबशेल और ऑर्बिटल के बारे में। अच्छा, एक मैं डायग्राम ड्रॉ कर रहा हूँ फॉर एन एटम, दैट इज दिस इज द न्यूक्लियस। नाउ शेल नंबर 1, शेल नंबर 2, शेल नंबर 3 एंड शेल नंबर 4। फर्स्ट शेल इज K, सेकेंड इज L, थर्ड इज M एंड फोर्थ इज N। तो मैं लिखता हूँ जी शेल और ऑर्बिट, दैट इज सेम, दे आर शोन एज K, L, M, N। सब शेल्स नेम्ड एज S, P, D एंड F। तो बच्चे पहले हम बात कर लें शेल और सब शेल्स की। तो ये आपके शेल्स थे, फर्स्ट शेल, सेकंड शेल, थर्ड एंड फोर्थ। नाउ inside these shells sub shells are present. They are, first shell contain S subshell, second shell contain S and P, third contain S, P, D and fourth contain S, P, D, F. Shell number 1 subshell is 1S. Shell 2 subshells are 2S and 2P. Shell 3 subshells are 3S, 3P and 3D. Similarly 4S, 4P, 4D and 4F. तो ये बच्चे आपके पास concept of shells and subshells. Now, when we discuss about the orbitals, are those that contain electron, and these are P subshell contain 3 orbitals. These are Px, Py and Pz. D contain 5. These are Dxy, Dyz and so on. तो इनकी डिटेल्स पढ़ेंगे, लेकिन आपको एक शॉर्ट सा रिव्यू दे दूं। ऑर्बिट और शेल दे आर सेम, सब शेल्स आर इनसाइड द शेल्स एंड ऑर्बिटल्स आर द प्लेस वेयर इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट। ईच ऑर्बिटल मैक्सिमम कंटेन 2 इलेक्ट्रॉन। अब हम फॉर्मूला देखते हैं कि आप किसी भी ऑर्बिट में, ऑर्बिटल्स में और सब शेल में इलेक्ट्रॉन, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कैसे फाइंड करते हैं। Maximum electrons in orbit or shell, the formula is 2n square. Here n is the number of shell, that is 1, 2, 3, 4. This is the shell number. If n equal to 1, it is your first orbit, that is called K, and the maximum electrons are 2 into 1 square. ये बच्चा आपका आंसर आएगा आफ्टर सोल्यूशन, 2 इलेक्ट्रॉन। इट मीन फर्स्ट शेल contain maximum 2 electron. तो यहाँ से मैं लिख रहा हूँ 2. If n equals to 2, orbit is L and the electrons are 2 square 4 and you got 8 electrons. ये बच्चे यहाँ मैं लिख रहा हूँ 8. If n equal to 3 means shell is M. Maximum electrons are 18. It means third shell contain maximum 18 electrons. Similarly, बच्चे if n equals to 4, orbit name n and the electrons are 32. तो बच्चे आपके 4 शेल में आएंगे 32 इलेक्ट्रॉन। तो बच्चे ये हमारे पास एक वे था इलेक्ट्रॉन फाइंड करने का, 2 into n square। तो आप यहाँ पे मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन किसी भी ऑर्बिट का निकाल सकते हैं। मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन इन सब शेल, ये आप कैसे फाइंड करोगे। द फॉर्मूला इज 2 into 2l plus 1. Here values of l are 0, 1, 2, 3. It is a quantum number called azimuthal quantum number. It represents 0 for S, 1 for P, 2 for D and 3 for F. ये हम लोगों ने डिस्कस किया। Now you find electron. If L equal to 0, subshell is S. Maximum electrons are. It means S subshell contain maximum 2 electron. तो बच्चे यहाँ मैं लिख रहा हूँ फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन थे, वो आपके आ गए एस सब शेल में, तो एस कंटेन मैक्सिमम 2. इफ एल इज 1, सब शेल इज पी, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स आर, दैट्स इक्वल टू 6 इलेक्ट्रॉन्स। तो बच्चे आपके पी सब शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स। तो बच्चे आपके यहाँ पे एस में 2 और पी में 6, तो ये आपके बने 6 + 2 8. इफ एल इक्वल्स टू 2, सब शेल इज डी, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स आर, this is 5 into 2 10, so maximum electrons are 10 in the D subshell. आप चेक करेंगे 2, 6 and 10, तो ये बच्चे आपके 18 इलेक्ट्रॉन शेल 3 में, that is complete. If L equals to 3, subshell is F, electrons are
इट कंटेन मैक्सिमम 14 इलेक्ट्रॉन्स। अगर आप इसको पूरा करते हैं 32 s2 p6 d10 एंड f14, तो आप इन्हें ऐड करें, आपका आंसर आएगा 32। तो बच्चे आपके पास था मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन फाइंड करने का फॉर्मूला इन एनी सबशेल। How we find maximum orbitals in orbit? The formula is n square for k orbit. N equals to 1 and 1 square equal to 1. It means there is only one orbital in k orbit. Look at that. K orbit contain only one orbital, that is s. For L orbit, n equals to 2 and 2 square is 4. So it contains 4 orbitals. These are s and अगर हम बच्चे p को ओपन करें, it contains px, py and pz. तो there are total 4 orbitals in L orbit or second orbit. For M orbit, n equals to 3. 3 square is 9. It means there are 9 orbitals in third shell. These are s, px, py, pz and dxy, dyz, dzx, dx square minus y square and dz square. तो आप इन्हें काउंट करें 1s, 3p and 5d. तो अगर आप इन्हें ऐड करते हैं 5 plus 3 8 plus 1 9. So there are 9 orbitals in the third shell. और जब हम फाइंड करेंगे मैक्सिमम ऑर्बिटल्स इन सबशेल, द फार्मूला इज इफ L equal to 1, subshell is s. तो आंसर इज 1. इट मींस s subshell has only one orbital. उसको हम बच्चे ऐसे ही कहते हैं. If L equals to 1, subshell is p. Your answer is 2 plus 1 3. It means p subshell has 3 orbitals. These are px, py and pz. If L equal to 2, subshell is d. The answer is 5. It means d subshell having 5 orbitals. These are dxy, dyz, dzx, dx square minus y square. Last one is dz square. तो ये बच्चे आपके पास कंसेप्ट है मैक्सिमम ऑर्बिटल इन सबशेल फाइंड करने के लिए. The final summary is the maximum electron in orbit formula is 2n square. Maximum electron in subshell, the formula is 2 into 2l plus 1. Maximum orbitals in subshell, the formula is 2l plus 1. Maximum orbitals in orbit, formula is n square. यहाँ बच्चे हमने फाइंड किया था n की वैल्यूज को पुट करके 1 2 3 4. तो आपके आंसर आए थे फर्स्ट शेल कंटेन मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन, सेकेंड शेल कंटेन मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन, थर्ड शेल कंटेन 18 electron and fourth shell contain 32. L equals to 0, 1, 2, 3. Maximum electrons in subshells are 2, p, 6, d10, f14. These are the maximum electron in subshells. Here L is 0, 1, 2, 3 means s, p, d and f. S contain only one orbital. P contain 3, px, py, pz, d contain 5, f contain 7. N equals to 1, 2, 3, 4 and so on. Orbits are k, l, m, n. Maximum orbital in k shell is 1, L shell is 4, 1s and 3p, m shell is 9, 1s, 3p and 5d. N shell contain 16, 1s, 3p, 5d and 7f. तो ये बच्चे आपके टोटल फाइनल समरी है. बच्चे अब हम लास्ट में ना एक ट्रिक देखते हैं इनको याद करने के लिए कि ऑर्बिटल में, सबशेल में और ऑर्बिट में क्या डिफरेंस है. ऑर्बिट, सबशेल एंड ऑर्बिटल. जिसको समझने के लिए हम एक काम करते हैं, हम कंपेयरिंग कर लेते हैं इलेक्ट्रॉन को और एक स्टूडेंट को. देखिए बच्चे, जैसे इलेक्ट्रॉन का ऑर्बिट है इस तरह से हमारा हाउस है, जैसे इलेक्ट्रॉन का सबशेल है हमारा रूम है, और जैसे इलेक्ट्रॉन का ऑर्बिटल है आपकी चेयर. मतलब आप अपने हाउस में रूम के अंदर चेयर के ऊपर ज़्यादा मेजॉरिटी टाइम एग्जिस्ट करते हैं, उसी तरीके इलेक्ट्रॉन अपने ऑर्बिट के अंदर सबशेल में होता है और वो स्टे कहाँ पे करता है, वो रहता है किधर है, उसको प्लेस कहाँ करते हैं, ऑर्बिटल्स के ऊपर. तो बच्चे आज का हमारा यहाँ पर लेक्चर एंड है.